Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 5 for research methods in business and here we will discuss hypothesis. The topics to be covered are introduction, meaning and examples of hypothesis, types of hypothesis, concepts of hypothesis, procedures for testing hypothesis and testing of hypothesis. Now first we will start with introduction. A hypothesis is an assumption about relations between variables कि variables में क्या क्या relation हो सकते हैं उसको हम कैसे assume कर रहे हैं वो hypothesis होती है. It is a tentative explanation of the research problem or a guess about the research outcome. So एक तरह से explanation होती है कि कैसे हम output को guess कर सकते हैं या किसी भी problem को explain कर सकते हैं. So before starting the research, the researcher has a general डिफ्यूज्ड इवन कन्फ्यूज्ड नोशन ऑफ द प्रॉब्लम. रिसर्च स्टार्ट करने से पहले थोड़ी कन्फ्यूजन होती है रिसर्चर को भी. इट मे टेक लॉन्ग टाइम फॉर द रिसर्चर टू से व्हाट क्वेश्चंस ही हैड बीन सीकिंग आंसर्स टू. So it is an interrogative statement that asks what relationship exists between two or more variables. तो एक तरह से interrogative statement होती है जिसमें हम questions पूछते हैं कि कोई भी दो variables या दो से ज़्यादा variables के बीच में क्या relationship exist कर रही है. Next is meaning and examples of hypothesis. A hypothesis is a tentative statement asserting a relationship between certain facts. This definition was given by Theodorsson and Theodorsson. So, hypothesis एक tentative statement होती है जिसमें हम कुछ facts को assert करते हैं, उसके बीच में relationship establish करते हैं. Kerlinger described it as a conjectural statement of the relationship between two or more variables. And Black and Champion described it as a tentative statement about something, the validity of which is usually unknown. In other words, a hypothesis carries clear implications for testing the stated relationship. कि एक relationship को state करने के लिए क्या क्या implications हो सकती हैं वो hypothesis के अंदर आती हैं. That is, it contains variables that are measurable and specifying how they are related. जो variables measurable होते हैं और कैसे वो related हैं आपस में ये चीज़ें hypothesis से पता चलती हैं. Then criteria for hypothesis construction. Now hypothesis is never formulated in the form of question. The standards to be met in formulating a hypothesis are: first is it should be empirically testable, whether it is right or wrong. कि टेस्टेबल होनी चाहिए कि हम ये कंप्यूट कर सकें कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट. इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज. द स्टेटमेंट्स इन द हाइपोथेसिस शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी. तो जो स्टेटमेंट्स है हाइपोथेसिस में वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए. इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज टू बी स्टैब्लिश्ड. वेरिएबल स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कैसे रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करेंगे उन वेरिएबल्स के बीच में. इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली. एक से ज़्यादा इशू अगर हम डिस्क्राइब करेंगे हाइपोथेसिस में तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ साइंटिफिकली जस्टिफाइड हाइपोथेसिस मस्ट मीट सम क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया कैन बी इट मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रेलेवेंट सोशियोलॉजिकल फैक्ट. एक पर्टिकुलर फैक्ट को रिफ्लेक्ट करे एक्यूरेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. It must not be in contradiction with approved relevant statements of other scientific disciplines. So वो एक तरह से contradictory नहीं होना चाहिए कि कहीं पे हमने कोई statement दी है फिर उसी को contradict करते हुए next space में हमने कोई और statement दी है. So it should not be contradictory. It must consider the experience of other researchers. जो दूसरे researchers हैं उनके experience को consider करना भी ज़रूरी होता है, तभी हम एक accurate hypothesis को डिज़ाइन कर सकते हैं. देन द नीड फॉर हैविंग वर्किंग हाइपोथेसिस. इट गिव्स अ डेफिनेट पॉइंट टू द इन्वेस्टिगेशन एंड इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑन द स्टडी. सो एक तरह से हाइपोथेसिस जो है एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. इट स्पेसिफाइज द सोर्सेज ऑफ डेटा. डेटा के क्या क्या सोर्सेज हैं विच शैल बी स्टडीड एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे शैल बी स्टडीड. तो ये डेफिनेशन जो है कि कैसे हम डेटा को स्टडी करने वाले हैं वो डिटरमाइन करता है.
Next is it determines the data needs. A hypothesis suggests which type of research is likely to be most appropriate. कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है कि हमारी रिसर्च सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली काम कर सके, वो हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है. Then it determines the most appropriate technique of analysis. A hypothesis contributes to the development of theory. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाइपोथेसिस अच्छी है या फिर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. नाउ फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्चुअली वो क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या है, किस चीज़ को वो हम स्टडी कर रहे हैं और क्या डेटा वो प्रोवाइड कर रही है, वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. देन स्पेसिफिसिटी, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज. टेस्टेबिलिटी, यानी कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, ऐसी कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए. देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स. थ्योरेटिकल रेलेवेंस, थ्योरेटिकली रेलेवेंट होनी चाहिए कि उसको हम थ्योरी में भी अप्लाई कर सकें. इट शुड बी कंसिस्टेंट विद इट्स फैक्ट्स. ऑब्जेक्टिविटी एंड सिंप्लिसिटी. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. One type of hypothesis asserts that something is the case in a given instance, that a particular object, person or situation has particular characteristics. So, अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं. एक टाइप की हाइपोथेसिस ऐसी हो सकती है जो वो किसी भी एक पर्टिकुलर केस को असिस्ट कर रही है या उसके इंस्टेंस को स्टडी कर रही है, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, सिचुएशन है, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना. अनदर टाइप ऑफ हाइपोथेसिस डील्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस और ऑफ एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स. कि दूसरी टाइप की हाइपोथेसिस ऐसी हो सकती है कि वो अकरेंस को स्टडी कर रही है कि कौन सा वेरिएबल कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है दूसरे वेरिएबल से. So, this type of hypothesis may state that X is associated with Y. A certain Y proportion of items, for example, urbanism, tends to be accompanied by mental disease, or then something are greater or lesser than something in specific setting. अब दो टाइप की बेसिकली हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नाउ इफ वी आर टू कंपेयर मेथड ए विद मेथड B about its superiority, and if we proceed on the assumption that both the methods are equally good, then this assumption is termed as null hypothesis. जब हम दो methods को compare करते हैं, एक method A को और एक method B को, कि कौन सा दोनों में से superior है, और साथ में एक assumption लेके चलते हैं कि दोनों ही equally good हैं, equally दोनों सही हैं, तो वो होती है null hypothesis, क्योंकि इसमें हमने दोनों को equal priority पे रखा है. As against this, we may think that the method A is superior, it is alternative hypothesis. जब हम ये assume करके चलते हैं कि method A superior है method B से, तो वो alternative hypothesis होती है. null hypothesis को हम present करते हैं H0 से और alternative hypothesis को present करते हैं HA से. Now, alternative hypothesis is usually one which wishes to prove, and null hypothesis is one which wishes to disprove. So alternative hypothesis होती है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, और null hypothesis होती है किसी चीज़ को disprove करना. Thus a null hypothesis represents the hypothesis we are trying to reject. कि हम किस चीज़ को reject कर रहे हैं, वो null hypothesis होती है, and alternative hypothesis represents all other possibilities. Second is, if the rejection of a certain hypothesis, when it is actually true, involves great risk, it is taken as null hypothesis. जब किसी भी hypothesis की rejection में बहुत ज़्यादा risk होता है तो उसे हम null hypothesis कहते हैं. Because then the probability of rejecting it when it is true is alpha, the level of significance which is chosen very small. Then null hypothesis should always be specific hypothesis. That is, it should not state about or approximately a certain value. null hypothesis जो है वो हमेशा specific होती है, यानी कि वो कभी भी approximate value नहीं देती, accurate value देती है. And generally in hypothesis testing we proceed on the basis of null hypothesis, keeping the alternative hypothesis in view. Next is the concept of hypothesis testing. बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हाइपोथेसिस का, वो हम अलग अलग
चीज़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके अंदर आ जाएगा डिसीजन रूल ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, एंड 2 tailed टेस्ट एंड 1 tailed टेस्ट. Now first is level of significance. Now this is a very important concept in the context of hypothesis testing. It is always some percentage which should be chosen with great care and thought and reason. So level of significance एक तरह से कुछ परसेंटेज पे बेस्ड होता है कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा सोच के फिर डिसाइड करते हैं कि उस रीज़न को शो करते हैं कि इस हाइपोथेसिस के लिए ये रीज़न है, तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है. देन डिसीजन रूल ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. अब डिसीजन रूल में आ जाएगा कि अगर हमें एक हाइपोथेसिस H0 दी हुई है और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है HA, सो हम एक रूल बनाते हैं जिसे डिसीजन रूल कहा जाता है कि हम या तो H0 एक्सेप्ट करेंगे और HA रिजेक्ट करेंगे, या फिर HA एक्सेप्ट करेंगे और H0 को रिजेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. नाउ टाइप 1 एरर होता है कि जब हम कोई भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, और टाइप 2 एरर होता है कि जब हम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए था. सो टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं बीटा से. देन 2 tailed टेस्ट एंड 1 tailed टेस्ट. In context of hypothesis testing, these two terms are quite important, and a 2 tailed test rejects the null hypothesis if the sample mean is significantly higher or lower than the hypothesized value of the mean of the population. तो 2 tailed test में क्या होता है कि हम एक null hypothesis को reject करते हैं अगर जो हमारा sample mean है वो या तो बहुत ज़्यादा high है या बहुत ज़्यादा low है हमारे हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से, जो हमने हाइपोथेसिस के लिए एक वैल्यू कंसिडर की थी उससे. तो 2 tailed टेस्ट में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. एंड अ 1 tailed टेस्ट वुड बी यूज्ड व्हेन वी आर टू से टेस्ट से वेदर द पॉपुलेशन मीन इज ईदर लोअर और हायर दैन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, जब हम लोअर और हायर लेवल्स कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस. अब एक प्रोसीजर होता है कि हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट. एक फॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे हम टेस्टिंग के लिए. दिस स्टेप कंसिस्ट इन मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो इसमें हम क्लियरली हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं और उसका नेचर बताते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की है. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट लेवल. उसके बाद हम एक सिग्निफिकेंट लेवल को सिलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एक प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और उसके बाद उसको स्पेसिफाई करते हैं कि क्या वो स्पेसिफाई कर सकता है. देन डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़. आफ्टर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्या सैम्पल्स लेने हैं. द चॉइस जनरली रिमेन्स बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टी डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग अ रैंडम सैम्पल एंड कंप्यूटिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब हम रैंडम सैम्पल दैट इज एस सिलेक्ट करते हैं, उसकी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं फ्रॉम द सैम्पल डेटा कंसर्निंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूटिलाइजिंग द रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें हम एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं ताकि एम्पेरिकल डेटा को फर्निश कर सकें. फिफ्थ स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि सैम्पल रिजल्ट जो है वो कितना डाइवर्ज कर सकता है अपनी एक्सपेक्टेशन से. नाउ देन लास्ट इज कंपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी. सो सिक्स स्टेप में क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करते हैं जो हमने कैलकुलेट की है और जो स्पेसिफाइड वैल्यू है अल्फा या बीटा के लिए सिग्निफिकेंस लेवल के लिए, और इफ़ द कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू और स्मॉलर दैन अल्फा वैल्यू इन केस ऑफ 1 tailed टेस्ट, देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. जब 1 tailed टेस्ट में कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है या स्मॉलर होती है अल्फा से, तो हम उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. और जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होती है तो उस टाइम पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. Now this is the flow diagram for testing hypothesis.
फर्स्ट स्टेप इज हम नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे. उसके बाद एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को स्पेसिफाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं करेक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सैम्पलिंग कैसे करनी है, टी सैम्पलिंग होगी या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या फिर सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. देन नेक्स्ट इज सैम्पल अ रैंडम सैम्पल एंड वर्क आउट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू. उसके बाद हम एक रैंडम सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं और उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू को कंप्यूट करेंगे. नेक्स्ट इज कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी. जो हमारा सैम्पल है उसके लिए प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा डाइवर्ट्स कर सकता है अपनी एक्सपेक्टेशन से. सो and last step is this probability equal to or smaller than alpha value in case of one tail test and alpha by 2 in case of two tail test. So one tail test में हम देखेंगे कि वो equal या smaller तो नहीं है alpha value से, और two tail test में हम alpha by 2 से उसे compare करते हैं. So अगर वो smaller है तो हम h नॉट को reject कर देते हैं, और अगर वो greater than अल्फा वैल्यू है तो उसमें हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. एंड देन वी रन द रिस्क ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर्स. नाउ नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने काफ़ी सारे अलग अलग टेस्ट को डेवलप किया है और उनको 2 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट को हम स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और ये जो टेस्ट है इसमें हम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को अज्यूम कर लेते हैं पहले से ही पेरेंट पॉपुलेशन की, जिसमें से हम सैम्पल्स को ड्रॉ कर रहे हैं. एंड assumptions like observation come from a normal population, sample size is large, assumptions about the population parameters like mean, variance etc. must hold good before parametric test can be used. और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस भी कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सिर्फ नॉमिनल या फिर ओरिजिनल डेटा को अज्यूम करता है, और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसके अंदर मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ इम्पॉर्टेंट पैरामेट्रिक टेस्ट, फर्स्ट इज जेड टेस्ट. जेड टेस्ट क्या होता है, ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एक्स स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट हैं ये अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं नॉर्मेलिटी की, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स हैं. दैट इज़ द सोर्स ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ फर्स्ट इज जेड टेस्ट. जेड टेस्ट जो है वो हमारा बेस्ड होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड इज यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स, पर्टिकुलरली द मीन. सो जेड टेस्ट हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, और ये हम यूज़ करते हैं जब हम सिग्निफिकेंस को जज करते हैं अलग अलग मेजर्स की, जैसे कि मीन. नेक्स्ट इज टी टेस्ट. टी टेस्ट इज बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नाम से पता चल रहा है टी टेस्ट हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है, एंड इज कंसिडर्ड एन अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल मीन. सैम्पल मीन की सिग्निफिकेंस को जज करने के लिए होता है, और फॉर जजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी 2 मीन्स. जो हमें 2 सैम्पल्स के 2 मीन्स दिए हुए हैं उनके बीच में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो जज करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर टेस्ट. एक्स स्क्वायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ सैम्पल वेरिएंस टू अ थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन. एंड लास्ट इज एफ टेस्ट. F test is based on F distribution and is used to compare the variance of the 2 independent samples. So F test जो है F distribution पे based होता है, और इसमें हम 2 independent samples की distribution को, उनकी variance को compare करते हैं. This test is also used in the context of variance for judging the significance of more than 2 sample means at one and the same time. Now here are some questions for you. First is, what do you mean by hypothesis, and what are the different types of hypothesis? That's all for this session. Thank you and have a nice day.